Which one of the following scholars suggested the Earth's origin from gases and dust particles? James Jeans, H. Alfven, F. Hoyle, and O. Schmidt. Out of these scholars, which suggested the Earth's origin from gases and dust particles? तो आइए पहले देख लेते हैं कि अर्थ के ओरिजिन को लेके क्या डिफरेंट थ्योरीज हैं. Earth is the third planet from the Sun and is the largest of the terrestrial planets. Age of the Earth is estimated to be around 4.5 billion years. The formation of Earth is linked to the formation of solar system and various theories have been proposed to explain it. So first of all, let us see कि क्या different theories दी गई हैं Earth के origin को explain करने के लिए. First one is the Nebular Hypothesis given by Immanuel Kant and revised by Laplace in 1796. According to this theory, planets were formed out of slowly rotating cloud of gas called nebula. This nebula cooled gradually and contracted, shelling out the rings of gases and dust. As you can see कि ये जो nebula था gravity के वजह से contract करने लगा और different rings form हो गई and later these rings they cooled to accumulate and form planets. One of them is called अर्थ एंड द सेंट्रल पार्ट बिकेम द सन. सो ये थ्योरी कहती है कि सबसे पहले एक नेबुला था ऑफ गैसेस एंड डस्ट और ये नेबुला कॉन्ट्रैक्ट करने लगा और जो सेंट्रल पार्ट था इस नेबुला का वो सन बन गया और जो डिफरेंट रिंग्स फॉर्म हुई इसी गैस की वो कॉन्ट्रैक्ट होके प्लैनेट्स बन गई. देन द सेकेंड थ्योरी इज प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस. This theory was given by Chamberlain and Moulton in 1904. According to this theory, the sun existed before the formation of planets. Another star came very close to the sun, and because of the gravitational pull of that star, small gaseous bodies were separated from the sun. यानी कि sun एक स्टार पहले एग्जिस्ट करता था और एक दूसरा स्टार sun के काफी नजदीक आ गया मूव करते हुए और दूसरे स्टार की ग्रेविटी की वजह से सन के अंदर से गैसेस और डिफरेंट प्लैनेटेसिमल्स पुल आउट हुए और वो जो गैसेस कॉन्ट्रैक्ट होके स्मॉल प्लैनेट्स बन गई विच आर कॉल्ड planetesimals. During rotation of planetesimals, they collided and formed planets. As you can see in this diagram, sun के near एक दूसरा star आता है और different small bodies they are pulled out of the sun, which eventually became planets. So this hypothesis is called planetesimal hypothesis. Next theory is gaseous tidal theory, given by James Jeans and Jeffrey, proposed in 1925. According to this theory, large star came near the sun. Due to gravitational pull, a gaseous tide was raised on the surface of the sun. As the star came nearer, the tide increased in size. Gaseous tide detached away from the star. The shape of the tide was like a spindle. As you can see कि जो star की वजह से gaseous tide move out हुआ sun से, it was bulging in the center and narrow at the edges. यानी कि जो स्टार था वो सन के नजदीक आया और एक स्पिंडल को उसने पुल आउट कर लिया फ्रॉम द सन और जैसे जैसे स्टार नजदीक आता गया ऑब्वियसली द साइज ऑफ दिस टाइड गॉट इंक्रीजिंग और जैसे वो स्टार एक नियरेस्ट डिस्टेंस आके फिर दूर जाने लगा इस टाइड का साइज फिर डिक्रीज होने लगा और जब वो स्टार ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से बाहर चला गया दिस होल बल्जिंग टाइड spindle it got separated from the sun and it broke into different pieces afterwards forming the 9 planets. तो आप देख सकते हैं कि according to this theory ये थ्योरी डिफरेंट साइजेस को एक्सप्लेन करती है प्लैनेट के कि जो जुपिटर बिगेस्ट प्लैनेट है वो बीच में क्यों है और जुपिटर से जैसे ही हम दूर जाते हैं किसी भी साइड तो प्लैनेट्स का साइज क्यों डिक्रीज होने लगता है. बट देयर वर सम ऑब्जेक्शंस विद द अबव थ्योरीज. ये जो तीन थ्योरीज हमने ऊपर देखी विच वाज द नेबुलर हाइपोथेसिस, प्लैनेटेसिमल हाइपोथेसिस एंड गैसियस टाइडल थ्योरी, ये थ्योरीज बहुत ही अच्छी थ्योरीज नहीं थी बिकॉज कुछ ऑब्जेक्शंस थे अकॉर्डिंग टू दीज थ्योरीज. According to these theories, Sun should have the greatest angular momentum in the solar system because of its mass and position in the center. इन जो तीन थ्योरीज को हमने डिस्कस किया अगर उन थ्योरीज को सही माना जाए तो जो सन है सेंटर में हमारे सोलर सिस्टम के उसके पास सबसे ज्यादा एंगुलर मोमेंटम होना चाहिए था पूरे सोलर सिस्टम में बिकॉज सन का मास सबसे ज्यादा है और सन की पोजीशन बीच में है. बट दिस इज नॉट ट्रू. सन के पास सबसे ज्यादा एंगुलर मोमेंटम नहीं है इन आवर सोलर सिस्टम. सन हैज ओनली 2% ऑफ द मोमेंटम ऑफ द सोलर सिस्टम. इसका मतलब ये जो ऊपर दी गई थ्योरीज थी ये सही नहीं थी.
एंड दीज थ्योरीज ऑल्सो कुड नॉट एक्सप्लेन द लार्ज इंटरप्लानिटरी डिस्टेंसेज। ये थ्योरी ये नहीं बता पाई कि जो सन से प्लैनेट्स का डिस्टेंस है वो इतना ज्यादा क्यों है, बिकॉज ये सारी थ्योरीज कहती हैं कि या तो सन से निकल के कुछ बॉडीज प्लैनेट्स बन गई या फिर सब कुछ एक साथ बना था नेबुलर हाइपोथेसिस में। बट उन सभी थ्योरीज में प्लैनेट्स का जो डिस्टेंस था सन से वो बहुत दूर नहीं होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है, प्लैनेट्स का डिस्टेंस काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू सन। एंड ऑल्सो द सन एंड द प्लैनेट्स दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। वी ऑल नो कि जो सन है एक स्टार है, ये मेनली हाइड्रोजन और हीलियम और कुछ हेवियर एलिमेंट्स का बना हुआ है, बट अदर प्लैनेट्स दे आर कंपोज्ड ऑफ वेरियस अदर एलिमेंट्स, जिसमें कि मेटल्स हैं, आयरन, निकल, हम अर्थ के बारे में जानते हैं, वेरियस अदर एलिमेंट्स। तो इसका मतलब कि सन की कॉम्पोजिशन में और डिफरेंट प्लैनेट्स की कॉम्पोजिशन में भी डिफरेंस है। इसे एक्सप्लेन करने के लिए देयर वाज वन इंटरस्टेलर डस्ट थ्योरी which was given in 1950 by Otto Schmidt and it revised the nebular hypothesis। जो कि पहली थ्योरी हमने डिस्कस की नेबुलर हाइपोथेसिस, उसको रिवाइज किया ऑटो श्मिट ने, एंड ही सेड थ्रू he considered that the sun was surrounded by solar nebula containing mostly hydrogen and helium along with what may be termed as dust. The friction and collision of particles led to formation of disc-shaped cloud and planets were formed through process of accretion। यानी कि ऑटो श्मिट ने कहा कि जो सन था वो हाइड्रोजन एंड हीलियम का बना हुआ था पहले ही, बट इट वाज सराउंडेड बाय अ क्लाउड ऑफ डस्ट। यानी कि सन के सराउंडिंग जो क्लाउड था इट वाज कंपोज्ड ऑफ डस्ट, और उस डस्ट से ही सारे प्लैनेट, डिफरेंट प्लैनेट्स फॉर्म हुए। यानी कि ऑटो श्मिट वाज द फर्स्ट स्कॉलर हु सजेस्टेड कि अर्थ वाज फॉर्म्ड आउट ऑफ डस्ट। सो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, आर आंसर विल बिकम ओ श्मिट।